Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is a tragedy drama Oedipus Rex by Sophocles. First of all, I will give you the brief summary of today's lesson, Oedipus Rex by Sophocles. Let's start. When Thebes is struck by the plague, the people ask King Oedipus to deliver them from its horror to find the murder of Lois. The king who ruled Thebes before Oedipus sets about to solve the murder, asks the blind prophet Tiresias, at first refuses to speak, but finally accuses Oedipus himself of killing Lois. Oedipus asks Jocasta about Lois, explaining that the prophet once told her that Lois, her husband, would die at the hand of their son. According to Jocasta, the prophecy did not come true because the baby died abandoned and Lois himself was killed by the band of robbers at the crossroads. Oedipus becomes stressed by Jocasta's remarks because just before he came to Thebes, he killed a man who resembled Lois at the crossroads. Oedipus also had prediction from an oracle that he was fated to kill his father and marry his mother. Fear of the prophecy drove him from his home in Corinth and brought him ultimately to Thebes. Oedipus finds out from a messenger that Polybus, king of Corinth, Oedipus' father, has died of old age. In fact, evidently Polybus and Merope are not Oedipus' real parents, but Oedipus is actually the son of Lois and Jocasta. And also, despite his precautions, the prophecy that Oedipus dreaded has actually come true. Realizing that he has killed his father and married his mother, Oedipus is agonized by his fate. Rushing into the palace, Oedipus finds that the king has killed herself with hanged herself. And Oedipus, finding her dead, he pulled the pins from her robes and stabbed out his own eyes, so that he can no longer look upon the misery he has caused. Oedipus now emerged from the palace, bleeding and begging to be exiled. He asked Creon to send him away from Thebes and to look after his daughter Antigone and Ismene. Oedipus Rex जब थीब सिटी में एंटर होता है तो इसका सामना एक स्फिंक्स से होता है और स्फिंक्स हर न्यू ट्रैवलर से एक पहेली पूछती है और सही जवाब ना देने वाले को मार देती है। इस तरह वो ओडिपस रेक्स से भी पहेली पूछती है कि वो कौन सा जानवर है जो सुबह के वक्त 4 टांगों पर, दिन को 2 टांगों पर और शाम को 3 टांगों पर चलता है। ओडिपस रेक्स इस पहेली का सही जवाब दे देता है कि वो जानवर इंसान है। जब इंसान छोटा बच्चा होता है तो वो 2 हाथों और 2 टांगों के सहारे चलता है। जब वो जवान होता है तो 2 टांगों पर चलता है और जब वो बूढ़ा हो जाता है तो 2 टांगों और छड़ी के सहारे यानी 3 टांगों पर चलता है। जवाब सही सुनने के बाद स्फिंक्स खुद ब खुद मर जाती है और थीब्स के लोग हंसी खुशी इसे थीब्स का किंग बना देते हैं और लॉयस की बेवा जोकेस्टा की शादी ओडिपस रेक्स से करवा देते हैं। यूं ओडिपस रेक्स थीब्स का बादशाह बन जाता है। लेकिन जब वो थीब्स का बादशाह बनता है ओडिपस तो थीब्स में एक बहुत बुरी बीमारी प्लेग फैल जाती है। तो थीब्स में ये बहुत ज़्यादा फैल चुकी हुई होती है। फसलें तबाह हो जाती हैं, औरतें बेवा हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा डेथ होती है, बच्चे, औरतें, बूढ़े सारे मर जाते हैं। तब ओडिपस अपने साले क्रियोन को ओरेकल्स के पास भेजता है ताकि ओरेकल से पूछ सके कि प्लेग को थीब्स से कैसे निकाला जाए। ओरेकल्स बताता है कि प्लेग की असल वजह लॉयस का डेथ है, यानी जो पास्ट का बादशाह था वो लॉयस था, क्योंकि लॉयस की डेथ ही प्लेग की असल सबब है। वो इसे बताता है कि लॉयस का कत्ल करने वाला भी थीब्स में छुपा हुआ है। जब इस कातिल को पकड़ा जाएगा तो तब ही थीब्स से प्लेग को दूर किया जा सकता है। ओडिपस रेक्स लोगों को यकीन दिलाता है कि वो लॉयस के कातिल को पकड़ेगा और इसे सख्त से सख्त सज़ा देगा और इस वक्त ओडिपस रेक्स लोगों को लॉयस के कातिल को पकड़ने वाले को इनाम देगा। लेकिन इन सब का कोई फ़ायदा नहीं होता। कोरस ओडिपस रेक्स को मशवरा देता है कि वो इस मामले के हवाले से टिरेसियस से मदद ले। ओडिपस कोरस को कहता है कि ऑलरेडी वो क्रियोन को टिरेसियस को बुलाने के लिए भेज चुका है।
जब टेरेजियस महल में पहुंचता है तो ईडिपस टेरेजियस से मदद की अपील करता है, लेकिन टेरेजियस ईडिपस को किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता, यानी कि वो मदद नहीं करना चाहता। वो टाल मटोल करता है और वहाँ से वापस जाना चाहता है। ईडिपस कहता है कि अगर तुमने थीव्स के लोगों की मदद ना की तो टेरेजियस को थीव्स का दुश्मन समझा जाएगा। तब टेरेजियस गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ईडिपस ही लॉयस का दुश्मन है, यानी कि वही किलर है। ईडिपस खुद ही थीव्स का दुश्मन है और ईडिपस खुद ही अपनी माँ का शोहर है, यानी इसने अपनी ही माँ से शादी की है। ईडिपस गुस्से में आ जाता है और गुस्से से टेरेजियस को बुरा भला कहने लगता है। ईडिपस क्रियोन पर इल्ज़ाम लगाता है कि इसने ही टेरेजियस से मिलकर कोई साजिश की है और क्रियोन गद्दार है। जुगेस्ट्रा ईडिपस और क्रियोन के दरमियान सुलह करवाने की कोशिश करती है और वो ईडिपस को समझाती है क्रियोन गलत नहीं है, और वो ईडिपस से रिक्वेस्ट करती है कि वो क्रियोन को माफ़ कर दे। इस तरह ईडिपस क्रियोन को माफ़ कर देता है। टेरेजियस की तल्ख बातें ईडिपस के दिमाग में घूम रही होती हैं। अब जुगेस्ट्रा ईडिपस को पुरसुकून करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि ओरेकल्स की बातों में कोई सच्चाई नहीं होती। वो कहती है कि मेरे पास इस बात का सबूत है कि वो सच्चे नहीं हैं। फिर वो इस हवाले से एक स्टोरी बताती है कि काफ़ी अर्से पहले मेरे शोहर लॉयस और मेरे ओरेकल्स ने कहा था कि लॉयस को इसका बेटा ही कत्ल करेगा और फिर वही बेटा अपनी माँ से शादी करेगा, यानी कि मुझसे, क्योंकि हमें जैसे ही बेटा पैदा हुआ हमने इसे एक शेफर्ड के हाथों कत्ल करवा दिया, जबकि लॉयस को कातलों ने इसे ऐसी जगह पर कत्ल किया जहाँ 3 सड़कें आपस में मिलती थी, यानी इसे कत्ल करा दिया गया। वही ओरेकल्स की प्रेडिक्शन गलत साबित हुई। इस तरह वैसे ही ओरेकल्स की बातें गलत साबित हुई होंगी। इस तरह जुगेस्ट्रा ईडिपस को काफ़ी पुरसुकून करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि ओरेकल्स की प्रोफेसी ठीक नहीं है, अब वो ऑलवेज़ गलत ही होते हैं। अब वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो कन्वर्सेशन करने के बाद ईडिपस एक बात बहुत ज़्यादा उसको परेशान करती है कि बादशाह लॉयस का कत्ल एक ऐसी जगह पर हुआ जहाँ पर 3 सड़कें आपस में मिलती हैं। ये बात ईडिपस को चुभती है कि काफ़ी अर्सा पहले ईडिपस ने भी एक कत्ल ऐसी ही जगह पर किया जहाँ 3 सड़कें आपस में मिलती थी। ईडिपस जुगेस्ट्रा से लॉयस के बारे में काफ़ी सवाल करता है। जुगेस्ट्रा मज़ीद बताती है कि लॉयस का कत्ल किया गया तब इसके साथ 5 आदमी थे, इनमें से एक बचकर जिंदा वापस आ गया और वही आई विटनेस था। इसने ही देखा था कि बादशाह लॉयस को किसने कत्ल किया है, लेकिन जब तुम थीव्स के बादशाह बने तो वो थीव्स को छोड़कर चला गया। ईडिपस अब मज़ीद कश्मकश में पड़ जाता है। अब वो अपने मसले को हल करने के लिए हर हद पार करना चाहता है। इस तरह ईडिपस इस आई विटनेस को अपने पास बुलाता है। इस आई विटनेस का इंतज़ार करते वक्त ईडिपस जुगेस्ट्रा को अपने पास्ट के बारे में बताता है कि इसका बाप का नाम पोलिबस है और इसकी माँ का नाम मेरोप था। एक दिन एक शराबी ने मुझे बताया कि तुम अपने माँ बाप के हकीकी बेटे नहीं हो, यानी इन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है। और तब ईडिपस ने इस बात को कंफर्म करने के लिए अपने पेरेंट्स से पूछा। तब ईडिपस के पेरेंट ने इसे टाल मटोल दिया और इसको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया। ईडिपस को सच्चाई जानने के लिए ओरेकल्स के पास जाता है। ओरेकल्स इसको इसकी उम्मीद के खिलाफ आंसर देता है। ओरेकल्स बताता है कि ईडिपस खुद ही अपने बाप का कातिल है और अपनी माँ से शादी करता है। तब ईडिपस इस डर से कि कहीं ओरेकल्स की बात सच ना हो जाए वो जगह छोड़ देता है और रास्ते में इसका गुजर एक ऐसी जगह से होता है जहाँ 3 सड़कें आपस में मिलती हैं, जहाँ पर काफ़ी अर्सा पहले इसका गुजर हुआ था और इसकी लड़ाई एक मगरूर शख्स से हुई थी जिसके साथ 5 आदमी थे और वहाँ लड़ाई में ही ईडिपस के हाथों एक अजनबी का कत्ल हो जाता है। अब ईडिपस जुगेस्ट्रा से कहता है कि वो बहुत परेशान है क्योंकि जिस अजनबी का कत्ल इसके हाथों हुआ था वो कहीं लॉयस तो नहीं था। जुगेस्ट्रा ईडिपस को तसल्ली देती है कि गलती से अगर तुमने लॉयस का कत्ल कर भी दिया तो फिर भी तुम इसके बेटे नहीं हो सकते क्योंकि हमने अपने बेटे को पैदा होते ही कत्ल करवा दिया था। जुगेस्ट्रा की बात वो सेटिस्फाइड नहीं होती। फिर एक मैसेंजर कौन से थीबस आता है और ये पैगाम लाता है कि इसका बाप पेलोपिस मर चुका है, यानी कि
कांट का जो किंग है वो मर चुका है। कांट की अवाम ये चाहती है कि ईडिपस को कांट का किंगडम और थीब्स का किंगडम बनाया जाए। ये बात सुनने के बाद ईडिपस बहुत खुश हो जाता है और मायूस भी होता है। वो सोचता है कि किस्मत कोई खेल तो नहीं खेल रही और इसे अपनी माँ मेरोप से शादी ना करनी पड़ जाए। तब कांट का मैसेंजर ईडिपस को जवाब देता है कि इनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ईडिपस पोलिबस और मेरोप का बेटा नहीं है, किसी और की औलाद है। मैसेंजर कहता है कि काफ़ी अर्सा पहले शेफर्ड ने इसे एक दूध पीता बच्चा दिया था, फिर इस बच्चे को किंग पोलिबस को दे दिया था क्योंकि पोलिबस की कोई औलाद नहीं थी। ये सुनने के बाद ईडिपस मैसेंजर से पूछता है कि वो बच्चा इसे किसने दिया। फिर इसने कहा कि वो लॉयस का मुलाजिम है और इसके बारे में जुकेस्ट्रा बेहतर जानती है। ये सब सुनने के बाद जुकेस्ट्रा काफ़ी डर जाती है, मजीद इसको बताना नहीं चाहती, सुनना नहीं चाहती। ईडिपस इस मुलाजिम को बुलाता है जिसने इसको बच्चा दिया था। शेफर्ड को बोलता है कि आखिरकार वो शेफर्ड वहाँ आ जाता है जिसने वो बच्चा मैसेंजर को दिया था। शेफर्ड ईडिपस को सच बताने में बहुत डरता है, लेकिन बादशाह के डराने के बाद इसने इसे सच बता दिया। वो बच्चा जुकेस्ट्रा और लॉयस का बेटा था जिसको इसने दिया। शेफर्ड को उस बच्चे को कत्ल करने का हौसला नहीं पड़ता और शेफर्ड ने इस बच्चे पर तरस खाकर इसकी जान बचा ली। अब बिल्कुल क्लियर हो गया था कि वो बच्चा ईडिपस था। ये सब सुनने के बाद ईडिपस और जुकेस्ट्रा के पांव तले से ज़मीन निकल जाती है। ईडिपस बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है। जुकेस्ट्रा सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है। ईडिपस जुकेस्ट्रा की फ्रॉक में से नीडल्स निकालता है और इसे अपनी आंखों में मारता है और आंखों में से ब्लीडिंग जारी हो जाती है और वो अपने साले क्रियोन से कहता है कि वो उसको थीप सिटी से काफ़ी दूर किसी जंगल में छोड़ आए और वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी बेटियों की देखभाल करे जो जुकेस्ट्रा और ईडिपस की होती हैं। दैट्स ऑल।